Hey, welcome back, guys, to my channel that is Auction Market Nifty, and this is your host Rohit. Okay, so let us try to understand what exactly happened in the market for both Nifty and Bank Nifty for 7th of October. Okay, guys, welcome once again to the channel. I'll just refresh the browser here so that you get a better visibility. Okay, so I have already plotted the volume levels for you people already. Let me show you once again. I'll just open the volume node, volume profile. We'll use the bar replay service. Okay, and this is our volume nodes. Previous days volume area what we have marked here. Okay, the volume area low. This is another volume area low, and this is point of control. Okay, at the higher end, what we have marked? At the higher end, we have marked this particular volume node and this particular volume node. That's it, guys. I'll just close this. Okay, let us come back and try to understand what exactly happened in the footprint. तो what exactly we checked, guys? तो हमें almost एक हफ्ते का गैप हो गया. So I'll just try to explain you the basic thing first. Whoever has joined the channel new, तो उनको आसानी हो समझने के लिए. तो we have something called as delta here. Okay, the people who have joined new, we have something called as delta here. I'll just open the Epic Pen. So what exactly is delta, guys? The difference between the buyer and seller. ठीक है, ये जो दो आपको वैल्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे. Okay, this is bid and this is ask. Okay, I'll just show you here. So this is bid and this is ask. So the difference between these two value is called delta. ठीक है, जिन्होंने भी चैनल आज ज्वाइन किया है, whoever is trying to understand what exactly is order flow, what exactly is auction market theory. So the basic here is the difference between the buyer and seller. ठीक है, the difference between the buyer and seller जो भी आएगा उसको हम डेल्टा बोलेंगे, एंड द डेल्टा वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड हियर. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज रिप्रेजेंटेड हियर, द फर्स्ट वैल्यू. ओके okay, let's begin. So what exactly I tell in most of our seminars, like try to ignore the first candle, because first candle will not give the momentum in that direction whatever it is showing us. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल में आपको कितना मिला है डेल्टा, अराउंड 45K का डेल्टा मिला है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे 85K की पॉजिटिव बाइंग हुई है. ठीक है, 103K की बाइंग हुई है यहाँ पे, 12K in front of that, 47K shorting, 5K we have in front of that, 2.2K is shorting. ठीक है, 17K in front of that, 23K. ठीक है, fair enough, but you can see here the delta is positive but the price action is negative. This is very important, guys. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि you have to understand the volume footprints and try to understand the delta as well. ठीक है, अगर आपको रेड कैंडल दिखाई दे, that doesn't mean it's a bearish sign, it is a bullish sign as well in some cases. तो यहाँ पे it is a bullish sign. Okay, I'll just delete this. Let's go ahead. 34K डेल्टा फेयर इनफ. ठीक है, और ये एग्जैक्टली इस वाले वॉल्यूम नोड के पास ही सपोर्ट ले रहा है जो हमने ऑलरेडी प्लॉट किया था. ठीक है, 11K. तो हम लोग व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर अ हैवी डेल्टा रीजन एरिया. तो हैवी डेल्टा रीजन एरिया कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? यू हैव टू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू, दिस पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू, दिस पर्टिकुलर डेल्टा वैल्यू. ठीक है, और उसके बाद आपको फुटप्रिंट्स रीड करना आना चाहिए. दिस आर द फुटप्रिंट्स. सो दिस आर कॉल्ड द फुटप्रिंट्स एट
कैंडल लेवल, ठीक है, कैंडल फुटप्रिंट्स व्हाट वी कॉल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेल्टा कहाँ पे आया है गाइस? 47K का डेल्टा है, ठीक है, 45K का भी डेल्टा है, 71K का भी डेल्टा है। बट वाई डिड वी मार्क ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन? यहाँ पे तो तीनों कैंडल में डेल्टा आ गया ना, वी हैव वी शुड हैव मार्क्ड ऑल दिस 3 रीजन, बट वाई डिड वी मार्क ओनली दिस पर्टिकुलर कैंड रीजन? ओके, why didn't we mark this? Why didn't we mark this? There is always a question, right? Delta तो हर जगह दिखाई दे रहा है, but why we are targeting only this particular zone? Because this is a fair value area. So how do you identify the fair value area? So there are a couple of rules, guys. Everything cannot be explained in a single video, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. Plus the stop loss, the entry exit, it cannot be explained in a single video. ठीक है, तो उसके लिए हमें एक अलग सेशन लेना पड़ेगा. अगर आपको डीप में जानना है वाई एग्जैक्टली वी डेडिकेटेडली मार्क ओनली दिस पर्टिकुलर एरिया, सो यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर अ डिटेल डिस्कशन. तो वहाँ पे हर एक चीज़ का आपको जवाब मिलेगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो वी हैव मार्क दिस पर्टिकुलर लेवल्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? वी हैव टू लुक फॉर अ वैलिड पुल बैक इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेल्टा कहाँ पे आ रहा है ज़्यादा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, जैसे ही मार्केट बुलिश हो गया, यू डोंट सी एनी सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ सेलिंग हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सो देर इज़ अ डबल कन्फर्मेशन दैट बायर्स आर ट्राइंग टू टेक देयर पोजिशंस, और यहाँ पे सेलर कोई पोजिशन हमें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, लुकिंग एट द प्रेजेंट डेल्टा. ठीक है, लेट्स गो अहेड, देखते हैं पुल बैक पे आया है कि नहीं आया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली सपोर्ट पे है ना 58K का सेलिंग हो गया है. बट डिड दैट सेलिंग सस्टेन्ड? डिड वी गेट अ फॉलोअप कैंडल फ्रॉम हियर? नो, राइट. सो देर इज अगेन अ थ्योरी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा इज ऑलमोस्ट 60K. ठीक है, ऑलमोस्ट 60K. सो सबसे ज़्यादा सेलिंग यहीं पे हुई है, बाइंग जोन के पास ही सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है. And how much buying we had? We got somewhere around 50K of buying, but in front of that we got 58K of selling as well. Okay, but did the selling continue? Did we get any follow-up candle from here? And did this particular volume area what we have already marked, did this break? No, right? So what exactly it means? It means इस वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन हो चुका है. ओके, सो दिस इज लाइक द मोटा मोटा आप ऊपर से जान सकते हो कि हाँ एब्जॉर्प्शन हुआ है, पर एब्जॉर्प्शन की भी एक अलग थ्योरी है. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई यहीं पे एब्जॉर्प्शन हुआ है? सो देयर आर बेसिकली 3 क्राइटेरियाज. ओके, लेट अस मूव अहेड. तो देखते हैं यहाँ पे वापस प्राइस इसी रेंज में आ गया गाइस, जहाँ पे मॉर्निंग का जो सपोर्ट था, जो हमने सपोर्ट मारा था, वापस प्राइस उसी रेंज में आ गया है. ठीक है, वी गॉट अ प्राइस ईयर, अ वैलिड पुल बैक, एंड प्राइस वेंट अप फ्रॉम ईयर. तो जितना आपको इजी लग रहा है गाइस, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी टू कैप्चर द ट्रेड. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. दिस इज़ फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे प्लॉट करना है. यू शुड बी हैविंग सम ग्रिप ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे हर एक लेवल पे आपको है ना डेल्टा की वैल्यूज़ दिख रही है. सो हाउ डू यू प्लॉट दैट पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ठीक है, आपको डबल कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? जो भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ यहाँ इस लेवल पे, विल दैट वर्क इन द मार्केट? ठीक है, तो ये देखो, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो गया, आई डिड नॉट ब्रेक दिस पर्टिकुलर जोन. I have already posted this in my telegram channel. I'll just show you guys. ठीक है, there is no significant sign of selling here. अगर आप डेल्टा देखोगे, nobody is interested to sell anything here. So that means we are bullish in the market, and
without any hustle, you can enter into the trade and capture this particular momentum from this point to this point. But आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सपोर्ट कहाँ पे मारना है और रेजिस्टेंस कहाँ पे मारना है, और एग्जिट वेर यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जस्ट अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर फ्लो आपको हेल्प नहीं करेगा मार्केट में मोमेंटम गेन करने के लिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, and then only you'll get some grip on the footprint concept. ठीक है. तो यहाँ पे आते आते मार्केट यहीं पे सस्टेन हो गया, बट यू गॉट अ वेरी गुड मूव गाइस. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ नॉट अ बैड थिंग. ओके, यू हैव ऑलमोस्ट कैप्चर्ड हाफ ऑफ द मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक, बट वो कैप्चर करने के लिए आपको आना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस मूव हेड टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस. देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आज. ठीक है, बैंक निफ्टी में थोड़ा एनालिसिस अलग होगा गाइज, क्योंकि बैंक निफ्टी में वी डोंट हैव इनफ एविडेंस ऑफ डेल्टा. आई विल जस्ट शो यू द लेवल्स फर्स्ट. You just watch this particular levels guys, how beautifully these levels have worked. ठीक है, you can easily enter here in this region, sorry, you can easily enter in this region, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक इस वाले जोन तक आप कैप्चर कर सकते हो. तो what exactly is this volume nodes. ठीक है, मार्केट विल ऑलवेज, ठीक है, मार्केट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वन वॉल्यूम एरिया टू अनदर वॉल्यूम एरिया. ठीक है, तो ये एक वॉल्यूम एरिया हो गया और एक वॉल्यूम एरिया हो गया. कुछ भी हो जाएगा इस, कितना भी पुल बैक आए, कितना भी मार्केट साइडवेज चला जाए, बट इट हैज़ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. तो वो डेस्टिनेशन आपको पहले से ही पता है. हाउ डू यू गेट इट? यू गेट इट फ्रॉम द वॉल्यूम प्रोफाइल. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है to plot this particular volume nodes. Just like Nifty, you cannot have the same approach in Bank Nifty. Bank Nifty में थोड़ा अलग अप्रोच काम करेगा प्लॉट करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे मैं डेल्टा दिखाता हूँ आपको. Why I do not believe on delta in Bank Nifty. अब यहाँ पे डेल्टा के वैल्यूज आप देखो गाइस, कितना दिखाई दे रहा है आपको. इट इज़ हार्डली 6,000 11,000. ठीक है, 12-15 हज़ार के अंदर ही आपको सारा डेल्टा मिल जाएगा. If you look at here this particular delta values, ठीक है, यहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशन आप कैसे करोगे. ठीक है, यू नीड सम स्ट्रॉन्ग वैल्यूज राइट टू जस्टिफाई योर एंट्री एंड एग्जिट पोजीशन. तो यहाँ पे डेल्टा वैल्यूज पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे गाइस. वी विल फोकस ऑन द प्राइस एक्शन, वी विल फोकस ऑन द वॉल्यूम नोट्स जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं डेल्टा में, बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया है. बट दैट डजेंट मीन दैट यहाँ पे स्पाइक नहीं आता है. ठीक है, वॉल्यूम इज़ लेस बट यू गेट अ इनफ स्पाइक विथ रिस्पेक्टिव निफ्टी. अगर निफ्टी 15 पॉइंट जा रहा है, बैंक निफ्टी विल डेफिनेटली को 25 to 30 पॉइंट्स. दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ बैंक निफ्टी. ठीक है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको. मैंने ये लेवल्स एक दिन पहले ही प्लॉट करके अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था. ठीक है, आई जस्ट शो यू गाइस द टेलीग्राम चैनल. इफ यू लुक एट हियर, यू कैन जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, मार्केट ने इस वाले पॉइंट को कितना रिस्पेक्ट किया है. यू आर गेटिंग दिस. मार्केट को यहाँ पे रीच करना ही था. ठीक है, फ्रॉम वन वॉल्यूम नोड टू अनदर वॉल्यूम नोड. ओके, व्हाट नेक्स्ट गाइस. ये हो गया बैंक निफ्टी का. ठीक है, निफ्टी का भी हमने ऑलरेडी अप्रोच दे चुके हैं. फ्रॉम वन वॉल्यूम नोड इट विल रीच टू अनदर वॉल्यूम नोड. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड हियर 940 का कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज एक्टिंग लाइक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन दिस रीजन. You have to understand the volume footprints
इन वॉल्यूम फुटप्रिंट्स ऑल्सो कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. रैंडमली यू कैन नॉट पिक एनी कैंडल एंड से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ अ फेयर वैल्यू एरिया. तो जो भी मैं कैंडल बताता हूँ दैट इज़ अ फेयर वैल्यू कैंडल. ठीक है, वी हैव द कॉन्सेप्ट एज फेयर वैल्यू इन ऑर्डर फ्लोज. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. विदाउट द फेयर वैल्यू एरिया इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन द मार्केट. आपको पता ही नहीं है कि मतलब आज का भाव क्या है. ठीक है, तो द डिस्काउंटेड भाव, it is also called as discounted प्राइस. तो प्राइस हमेशा है ना डिस्काउंट के पीछे आता जाता रहता है. ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर गया है, देर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी और ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियर, क्योंकि मार्केट को तो इट इज़ रन बाय ह्यूमन इमोशंस राइट. तो इट विल ऑलवेज लुक फॉर सम डिस्काउंटेड प्राइस एंड प्राइस विल ऑलवेज कम हियर. But you have to understand that discounted price. So do you have that tendency to understand the discounted price market में? लाइव मार्केट में एक कैसे आइडेंटिफाई करना है गाइस डिस्काउंटेड प्राइस. सो दैट इज चैलेंजिंग राइट. सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस डिस्काउंटेड प्राइस कॉन्सेप्ट, प्राइस कैसे आएगा वहाँ पे, प्राइस कैसे बिहेव करेगा, तो वॉट वी ऑल्सो हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम. Okay, so if you don't want to join the mentorship program, that is also fine. In the Telegram channel we have already discussed all this basic thing. You can join our Telegram channel. Okay, watch the content carefully, because this is just an education channel guys. No tips and calls are provided here. We just guide you to understand the order flow concepts here. ठीक है, अगर आपको डिटेल में जानना है then you can join our mentorship program, else it is not required, it is not recommended to join the mentorship program. Okay, so the people who have joined the mentorship program, those people are already into the trade, they are earning very well. ठीक है, I will show you the screenshots of those people जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया है. ठीक है, you have to just observe this particular levels guys. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आना चाहिए. ठीक है, एंड हाउ डिड आई कैप्चर द बॉटम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई ऑलवेज हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एलिफेंट कैंडल कॉन्सेप्ट एंड रिवर्सल की रिवर्सल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो दिस पर्टिकुलर थिंग, यू जस्ट ऑब्जर्व इट. एलिफेंट कैंडल स्ट्रैटेजी, व्हाट एग्जैक्टली इज एलिफेंट कैंडल स्ट्रैटेजी गाइस. ये आपको हेल्प करेगा क्विक स्कैल्प के लिए. अगर मान लो आपने कहीं पे लॉस किया है, ठीक है, अगर आपको रिकवर करना है, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एलिफेंट कैंडल स्ट्रैटेजी. यू कैन ईजिली रिकवर इन दैट एलिफेंट कैंडल स्ट्रैटेजी विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:3 easily. ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलिफेंट कैंडल स्ट्रैटेजी. I'll just show you guys मैंने कहाँ पे क्या लिया था. तो दिस इज वेयर आई एंटर्ड. इसको रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं गाइज. मैंने पूरा एलिफेंट कैंडल कैप्चर कर लिया. सो द रीज़न बिहाइंड ट्रेडिंग विथ ओनली 1 or 2 लॉट्स इज लाइक आई वांट टू show the people like the money is just an illusion guys. If you understand the concept you can very easily execute the things in the market. ठीक है, तो आई हैड कपल ऑफ फ्रेंड्स इन द ग्रुप जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा लॉस करके आ चुके थे एंड दे गॉट डीमोटिवेटेड सेइंग दैट दे डोंट हैव इनफ कैपिटल नाउ टू एंटर टू द मार्केट. तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है. डोंट डीमोटिवेट गाइस. आप लिमिटेड कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो विथ अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट. उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट द ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट. ठीक है, ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट आना चाहिए. सेकेंड इज फेयर वैल्यू एरिया. ठीक है, थर्ड इज द फुटप्रिंट रीड करना आना चाहिए गाइस कैंडल का. ठीक है, और डिस्काउंटेड प्राइस तो मैंने ऑलरेडी बोला है, इसी में डिस्काउंटेड प्राइस का कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है, एंड वॉल्यूम नोड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि प्राइस हमेशा वॉल्यूम नोड्स के बीच में ही ट्रैवल करता है. फ्रॉम वन वॉल्यूम नोड इट विल ट्रैवल टू अनदर वॉल्यूम नोड.
तो आपका है ना रिस्क रिवॉर्ड जो फैक्टर है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का फैक्टर, इट विल बी मेंटेन प्रॉपरली इन दिस पर्टिकुलर जोन्स, क्योंकि आपको पता है मतलब आपका रिस्क कितना, अब मान लो आपने एंट्री यहाँ पे ली है, ठीक है, आपका बस रिस्क इतना ही है भाई, ठीक है, आपका रिवॉर्ड तो यहाँ तक है ना, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1:3 और 1:2 इन सम केसेस। योर रिस्क इज ओनली वन कैंडल ईयर इन ऑर्डर फ्लो। मैं ज़्यादा रिस्क पे जाता ही नहीं, जस्ट वन कैंडल इज योर रिस्क एंड 5 to 6, मिनिमम 5 to 6 कैंडल इज योर रिवॉर्ड, ठीक है। This is what I educate the people. Whoever ask me what is risk reward. Risk is one candle, guys. Reward is 5 to 6 candles. Minimum 5 to 6 candles. This is how you will gain momentum in the market. Okay. Thank you, guys. Thanks for your time. This is what I had.